all of you. Today I am going to deliver a lecture on a topic basic of chemistry. We all have taught about the fundamental of chemistry and we knows fundamental of chemistry, but here we will discuss that the basic of chemistry, ancient time of chemistry. So we can categorize the ancient type of chemistry into the basically four categories. The first one is early humans, second one is early metallurgy, third one is bronze age, and the last one is iron age. If we talk about the early civilizations in the chemistry, then that is started about the 1000 BC, when the human being learning about the chemicals. The first thing, if we knows about, they are extracted minerals and ores from the lands as well as stones, and they are making the poetries and glazes. One thing we should remember that here the first metal was bronze, which was discovered, and that was, as we know that bronze is a type of mixed metal. So that's why we can say that the first metal that was discovered by human being was bronze, and that is known metal, the first known metal on the earth's surface. On the further, we can called as such type of chemistry as pro-science of chemistry, where the chemistry was firstly transforms some matters and their presence in the form of different ores, and the metals and elements from such ores extracted and purified and then used in their daily life. Such phenomenon is known as transformation. Transformations is also, we can say that, any type of metal which is changed in the form of usable form for the human beings for their different type of daily works, uses and other things. And for such process we used different type of scientific method. Here different type of scientific method for their utilizations and their further uses. Let us proceed for the next phase. Yes, this one is early human. As we know that early human doesn't know how to use chemicals, how to use metals, how to use rocks, but he knows that such things contain several types of metal. Basically अगर इसको थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज में समझना चाहें तो हम ये कहेंगे कि जो अर्ली ह्यूमन था, जो प्राचीन समय का जो ह्यूमन था, वो नहीं जानता था कि हम जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसमें मेटल्स हैं या फिर नहीं हैं, या फिर उनको कैसे हम यूटिलाइज़ करते हैं। वो सिर्फ क्या करता था कि जो भी उसको चीज़ें मिलती थी उसको अपने लाभ के लिए या फिर अपने डेली लाइफ में यूजेस के लिए वो यूटिलाइज़ करता था। हम अगर एंशिएंट टाइम की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट कंट्री दैट वाज साउथ अफ्रीका, जहाँ पे अगर हम देखें तो अर्ली ह्यूमन बीइंग को आइडेंटिफाई किया गया था और ये पता किया गया था कि उनके अंदर एलिमेंट्स को लेके कुछ नॉलेजेस हैं, या फिर वो ये जानते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि उनके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है अबाउट केमिस्ट्री। दे नोज, उनको ये पता था कि जो चेंजेस होते हैं केमिकल्स में, या फिर कलर चेंजेस हो, या फिर हम आयरन्स की बात करें उसमें डिकम्पोजिशन हो, तो वो कहीं ना कहीं ये जानते थे कि इन चीज़ों को हम
केमिकल चेंज बोल सकते हैं। और ये जो केमिकल चेंज है ये कंटिन्यूसली नेचर में होते रहते हैं। अगर हम चाहें तो भी ये चेंजेस होंगे और ना चाहें तो भी उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो चेंजेस होते हैं ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, कंटिन्यूसली होते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा अगर हम देखें तो उन ह्यूमन बींग्स के अंदर थोड़ी बहुत आर्ट्स की भी चीज़ें थी। जैसे उन लोगों ने एनिमल ब्लड्स को या फिर फ्लूइड्स को आइडेंटिफाई करना सीखा और उन्होंने ये भी जाना, ये आइडेंटिफाई किया कि जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं उनके जो ब्लड्स के कलर होते हैं या फिर अदर सैंपल्स अगर हम देखें तो उनके जो कलर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं। या फिर हम देखें फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ब्लड कलर, तो ब्लड के डिफरेंट कलर होते हैं। इसको इन लोगों ने नोटिस किया था, ब्लड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर। या फिर अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स थे उनके अंदर आने वाले जो स्मेल थे, उनके अंदर आने वाले जो स्मेल्स थे वो भी स्मेल्स क्या थे, डिफरेंट टाइप्स के थे। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके अंदर के जो स्मेल्स हैं वो डिफरेंट हैं या फिर जो ब्लड हैं उनके कलर डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था कि जो डिफरेंट टाइप के ब्लड सैंपल्स हैं या फिर जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को कंटेंट करते हैं, और जितने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को कंटेंट करते हैं सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं, प्रिमिटिव टाइप की बात कर रहे हैं, उनको ऐसा पता तो था नहीं कुछ या फिर ना ही कोई पीरियोडिक टेबल था, तो उन लोगों ने ये सोचा था कि जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से स्मेल आ रहे हैं, जिसकी वजह से कलर आ रहे हैं, वो अलग अलग हैं। और जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं उनका नेचर या फिर उनका स्वभाव या फिर उनका बिहेवियर या फिर उनका केमिकल कंपोजिशन, हम जो चीज़ें भी कहें वो क्या है, डिफरेंट हैं। इसका मतलब क्या है कि इसको एक सिंपल लाइन में हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट हैव इसको बेसिकली ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि जितने भी तरह के तत्व थे इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि अगर उनके नेचर अलग हैं, स्वभाव अलग हैं, उनके स्मेल अलग हैं, रंग अलग हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी तरह के एलिमेंट्स होंगे उन सबके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, हमेशा अलग अलग होंगी। यानी कि एक ही तरह के एलिमेंट्स नहीं पाए जाते हैं अर्थ पे, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और जितने भी तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं दे हैव डिसिमिलरिटीज़, यानी कि उनमें एक दूसरे से क्या होगी, भिन्नता होगी। चलिए इसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक आता है, दैट इज अर्ली मेटलर्जी। अर्ली मेटलर्जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि मेटलर्जी क्या होता है, व्हाट इज़ द मेटलर्जी। एंड अर्ली मेटलर्जी का मतलब क्या हुआ? अर्ली मेटलर्जी का मतलब ये हुआ, मेटलर्जी का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी एलिमेंट होता है, किसी एक सिंपल एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वो किस फॉर्म में होगा, वो हमेशा इम्प्योर फॉर्म में होगा। ठीक है, वो नेचर में अगर हम उसको देखेंगे तो हमेशा इम्प्योर फॉर्म में होगा, या फिर इसको हिंदी में बोलें तो अशुद्ध फॉर्म में होगा। ठीक है, अशुद्ध फॉर्म में होगा। अब अगर इसको हमको यूज़ करना है तो क्या उसको हम इम्प्योर फॉर्म में यूज़ करेंगे? नहीं, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, प्योरीफाई करना पड़ेगा या फिर प्योर करना पड़ेगा। ठीक है, जो इम्प्योर फॉर्म होता है, एक चीज़ याद रखिए, मेटलर्जी में अगर हम देखें तो जो इम्प्योर फॉर्म होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओर। ठीक है,
जो भी इम्प्योर फॉर्म होगा किसी भी सब्सटेंस का उसको बोलेंगे ओर। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारा ओर है उसमें सिंगल मेटल है, ठीक है, या सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। जब ओर की बात करते हैं तो यहाँ एक से अधिक टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि द ओर कंटेन्स सेवरल टाइप ऑफ एलिमेंट्स, इसीलिए उसको इम्प्योर फॉर्म कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको कोई ऐसा ओर मिला है जहाँ पे हमारा आयरन भी है, कॉपर भी है, निकल भी है, ठीक है। तो इन तीनों को अगर हम मिला देंगे, सपोज करिए इन तीनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन तीनों को बोलेंगे इम्प्यूरिटी। इन तीनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया, तो इन तीनों को बोलेंगे इम्प्योर, ठीक है। या फिर जनरल भाषा में बोलें तो इसको बोलेंगे अशुद्धि। करना क्या हमको होता है, करना ये होता है कि अब इसमें से हम क्या करेंगे, आयरन को अलग करेंगे, ठीक है। जब आयरन को अलग कर लेंगे हम तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। अब इस आयरन को अगर हमने सिर्फ सिंपली अलग कर लिया तो दैट इज कॉल्ड एज प्योर। सिमिलरली कॉपर को हम अलग करेंगे, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा प्योर। निकिल को अलग करेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्योर। तो मेटलर्जी एक तरह का क्या है, सिंपल सा केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करते हैं। इम्प्यूरिटीज़ इन द सेंस ऑफ वो मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी हो सकता है, मेटल कार्बोनेट भी हो सकता है, मेटल ऑक्सलेट भी हो सकता है। ये सारे के सारे क्या होंगे, इम्प्यूरिटीज़ होंगे। तो उनके हम क्या करते हैं, ऑक्सलेट हाइड्रोक्साइड फॉर्म को रिमूव करते हैं और प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। दैट फिनोमेनन इज नोन एज मेटलर्जी। लेकिन अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम में, तो एंशिएंट टाइम में क्या इतने केमिकल्स थे जिसकी वजह से जो एक प्रिमिटिव या फिर अर्ली एज ह्यूमन बीइंग हो वो इम्प्यूरिटी को रिमूव कर सके? ऐसा नहीं है। उस समय लैक ऑफ नॉलेज था। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो उस समय जो ह्यूमन बीइंग था, अर्ली ह्यूमन बीइंग था, उसके पास ज्ञान की कमी थी, दूसरा संसाधन की कमी थी। ये दोनों चीज़ें उसके पास क्या थे, नहीं थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज थिंग नॉलेज एंड द सेकेंड वन इज थिंग रिसोर्सेस। Both are less available or sometimes not available for early human beings, ठीक है। अगर हम बात करें तो उस समय क्या था, एक तो नॉलेज की कमी थी, यानी कि हमारे पास जानकारियाँ नहीं थी, ज्ञान नहीं था कि हमको अगर किसी भी इम्प्योर सब्सटेंस को प्योर करना है तो हम वो किस तरह से करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या थी कि अगर हमारे पास नॉलेज भी था तो फिर रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास, जिसकी वजह से हम उसको प्योर कर पाएँ। तो इन लोगों ने क्या किया, सोचिए, इन लोगों ने स्टार्टिंग में जो नेचुरल थिंग्स हैं उनको इन्होंने यूटिलाइज किया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो टेक्निक इन्होंने लिया था प्योरिटी का, दैट वाज वाटर, ठीक है। वाटर के थ्रू या फिर हम बोलें वाटर से वॉशिंग के थ्रू, वॉशिंग के थ्रू इन लोगों ने सब्सटेंस को प्योर आउट करना शुरू किया। यानी कि जो सब्सटेंस थे उनको इन्होंने क्या किया, वाटर से वॉश आउट किया। जो इम्प्यूरिटीज़ यानी कि जो भी उसमें अशुद्धि थी वो अगर दूर हुई तो ठीक है, जो सब्सटेंस मिले उसको इन लोगों ने क्या कहा कि दैट वाज प्योर सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि वाटर से सारे तरह के इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव नहीं किया जा सकता है। और ये चीज़ें प्राचीन टाइम में या फिर एंशिएंट टाइम में जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे उनको पता नहीं थी। जैसे अगर देखिए कोई भी सॉल्ट सस्पेंशन है, ठीक है, कोई भी सॉल्ट सस्पेंशन है, जैसे एग्जांपल हम ले लें NaCl ले लें, ठीक है, या फिर हम KCl ले लें,
या फिर MgCl2 ले लें। ये जितने तरह के साल्ट सस्पेंशन हैं, इनको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो यहाँ पे आप अगर NaCl को डिज़ोल्व करेंगे तो आपको Na प्लस और Cl माइनस मिलेगा। सिमिलरली KCl को अगर डिज़ोल्व करते हैं तो K प्लस Cl माइनस, एंड MgCl2 को डिज़ोल्व करेंगे तो हमको Mg प्लस 2NCl2 माइनस मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि द नॉर्मल साल्ट सस्पेंशन कैन बी प्यूरिफाई बाय द हेल्प ऑफ वाटर। व्हेन वी डिज़ोल्व इन वाटर वी कैन डिसोसिएट इनटू इट्स आयनिक फॉर्म। यानी कि अगर इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, वाटर में घुलाएंगे, तो इसके आयनिक फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सोडियम को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, यहाँ से पोटेशियम को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, यहाँ से मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई और हमको मिल रहा है तो उसमें नॉर्मल ये साल्ट्स भी होंगे। सपोज करिए कि उसमें अगर कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, या फिर हम बोलें ऑक्सलेट हैं, ठीक, तो अगर इस तरह के सॉल्ट सस्पेंशन हैं तो वी कैन नॉट रिमूव फ्रॉम द वाटर। ठीक है, यानी कि इस तरह के सॉल्ट सस्पेंशन को हम वाटर से रिमूव नहीं कर सकते हैं। डू नॉट रिमूव। अब वाटर में इसको डिसॉल्व करते रहिए, लेकिन ये रिमूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं। पहली होती हैं वाटर सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ और दूसरी होती हैं वाटर इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़। जिस इम्प्यूरिटीज़ को वाटर में डिसॉल्व करके हम ईजिली रिमूव कर सकते हैं उसको बोलेंगे हम वाटर सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़, और जिसको हम ईजिली डिसॉल्व करके रिमूव नहीं कर सकते हैं उसको बोलेंगे वाटर इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़। ठीक है, तो ये अगर हम मेटलर्जिकल अर्ली मेटलर्जी की बात करें तो अर्ली मेटलर्जी में अगर हम देखें तो इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया था फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज इनके क्या थे? तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमने अब डिस्कस किया वाटर था। ठीक है, वाटर के अलावा इन्होंने एयर को भी यूज़ किया एज अ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन रिसोर्सेज थे वो आपके वाटर एंड एयर थे। ठीक है, एयर को भी यूटिलाइज किया। ठीक है, एयर को यूटिलाइज कैसे करते हैं? तो एयर को यूटिलाइज करने का मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि हमारे पास कोई एक ओर है। ठीक है, हमारे पास एक ओर है। ठीक है, तो अगर इस ओर को हम ले रहे हैं और इस ओर को क्रश कर रहे हैं, ठीक है, इस ओर को हमने क्या किया? क्रश कर दिया। तो क्रश करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो पार्टिकल साइज होगा, पार्टिकल साइज विल बी डिसिमिलर। जैसे मान लीजिए हमने ओर लिया और ओर को क्रश कर दिया। ठीक है, तो जो पार्टिकल साइज होगा उसमें वो क्या होगा? कोई पार्टिकल साइज छोटा होगा, कोई पार्टिकल साइज बड़ा होगा, कोई उससे भी छोटा होगा। ठीक है, और इस पार्टिकल साइज को हम क्या करेंगे, या फिर इस पाउडर्ड फॉर्म को हम क्या करेंगे? एक फ्लोइंग एयर जहाँ पे होगा, जहाँ पे हवा बह रही होगी, वहाँ पे हम इसको क्या करते हैं? स्लोली डालते हैं, पुट डाउन करते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ गिराते हैं। तो जब आप नीचे की तरफ इसको गिराएंगे तो आप ये देखेंगे कि जिस भी पार्टिकल का साइज बड़ा है, ठीक है, वो आपको नज़दीक गिरेगा। ठीक, जिसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटा है वो सबसे दूर जाके गिरेगा। ठीक है, और जिसमें पार्टिकल साइज थोड़ा बहुत बड़ा है वो आपका थोड़ी दूरी पे गिरेगा। तो इस कैटेगरीज पे हम क्या कर सकते हैं? जो ओर हैं उनको उनके पार्टिकल साइज के बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं, या फिर एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ा पार्टिकल साइज वाला होगा वो पास हमको मिल जाएगा, उसके बाद जो होगा वो उससे थोड़ा दूर, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे लास्ट में।
तो कहने का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज थे इनके पास वो क्या थे, लिमिटेड थे अर्ली ह्यूमन लाइफ में, और इन रिसोर्सेज को, जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनको इन्होंने यूटिलाइज़ किया, ठीक है। और यूटिलाइज़ करने के बाद जो इनके पास ओर्स थे उनको इन्होंने प्यूरीफाई किया था। तो ये दोनों के दोनों क्या है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हैं जो कि इन्होंने मेटलर्जी के फॉर्म में यूज़ किया था, ठीक है। अब अगर हम मेटल की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन मेटल था इनमें, जैसे इन्होंने क्या किया था कि ग्लास को आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, शीशे को डिस्कवर किया था। शीशे के अलावा अगर हम देखें तो गोल्ड, सोना जो होता है आपका, ठीक है, सोने को भी इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। लेकिन सोना जो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारा इजिप्ट में मिला था, ठीक है। गोल्ड जो है सबसे पहले अगर आइडेंटिफाई किया गया था तो वो कहाँ था, हमारा इजिप्ट में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। द नेक्स्ट वन इज ब्रोंज एज। तो देखिए अभी तक का जो टाइम था उसमें ये था कि जो हमको मेटल मिलते थे वो मेटल्स के फॉर्म में थे या फिर प्योर मेटल के फॉर्म में थे। लेकिन उसके बाद का जो टाइम आया, ठीक है, उसके बाद का जो टाइम था वो मिक्स्ड मेटल का टाइम था। मिक्स्ड मेटल, ठीक है। मिक्स्ड मेटल जो है वो अगर एक से अधिक मेटल्स को हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो वो जो टाइम होता है मतलब वो जो सब्सटेंस हमको मिलेगा, जो न्यू सब्सटेंस मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड मेटल। और ब्रोंज जो हमारा है, ब्रोंज इज अ टाइप ऑफ मिक्स्ड मेटल, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रोंज जो है, ब्रोंज की डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी, ठीक है। ब्रोंज क्या है, ब्रोंज भी एक तरह का मिक्स्ड मेटल है जिसमें आपका क्या होता है, कॉपर होगा और टिन होगा, ठीक है। कॉपर और टिन को आपने मिला दिया तो जो मिक्स्ड मेटल बनेगा उसी को बोलेंगे ब्रोंज, ठीक। तो आने वाला जो टाइम था उसको इन्होंने इनको ये पता चला कि जो मिक्स्ड मेटल होते हैं इनकी क्वालिटीज़ क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे अगर हम कॉपर को क्या करें, कॉपर को सेपरेटली यूज़ करें, ठीक है, और टिन को सेपरेटली यूज़ करें। सपोज करिए हमने इसको मिक्स नहीं किया हुआ है, कॉपर को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं और टिन को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो क्वालिटी होगा, ठीक है, उससे बेटर क्वालिटी हमको कहाँ मिलेगी, जब इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे, ठीक है, ब्रोंज में। तो इनको ये आइडेंटिफाई हुआ, ये पता चला कि जो मिक्स्ड मेटल होते हैं इनकी क्वालिटीज़ या फिर फीचर्स इम्प्रूव किए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया, मिक्स्ड मेटल को बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले जो इन्होंने मेटल आइडेंटिफाई किया था वो हमारा ब्रोंज था, जिसमें कॉपर और टिन को इन्होंने मिक्स किया हुआ था, ठीक है। और कॉपर और टिन के मिक्स करने से ब्रोंज इनको मिला और उसको जब यूटिलाइज़ किया तो इनको ये पता चला कि जो हम कॉपर अगर हम सेपरेटली यूज़ करते हैं या फिर टिन यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए ब्रोंज है। इसकी क्वालिटीज़, इसके फीचर्स सारे इम्प्रूव कर गए। इसलिए जो ये टाइम था पूरा का पूरा, इसको हम ब्रोंज एज कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस टाइम में अगर हम देखें तो फिर ब्रोंज की ही डिस्कवरी हुई थी। जो फर्स्ट मिक्स मेटल है वो ब्रोंज है हमारा, लेकिन इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के एलायज हैं हमारे, डिफरेंट टाइप के एलायज की डिस्कवरी स्टार्ट हुई, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले जो ऐसे एलायज जिनकी लाइफ टाइम ज़्यादा हो, जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो, इन्होंने उनको क्या बोला, सुपीरियर एलायज। सुपीरियर एलायज, सुपीरियर एलायज का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर हम कोई कॉपर का स्पॉट ले रहे हैं, बर्तन ले रहे हैं, ठीक है,
तो कापर का अगर हम कोई पॉट लेते हैं या बर्तन लेते हैं और उसकी लाइफ जो है 10 ईयर है, ठीक है। टिन का अगर हमने कोई बर्तन लिया या फिर टॉप लिया, तो इस पॉट की जो एज है वो हमारा सपोज करिए 8 ईयर है, ठीक है। तो जो इन्होंने मिक्स्ड मेटल बनाया, इस मिक्स्ड मेटल की जो एज थी वो इन दोनों से ज़्यादा थी, दैट इज़ 20 ईयर, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने इसको क्या बोला, सुपीरियर एलाय। सुपीरियर इन द सेंस कि जिसकी लाइफ टाइम ज़्यादा हो, जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो, जिसके फीचर्स ज़्यादा हों, उसको इन्होंने क्या बोला, सुपीरियर एलायस। फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग अगर देखें तो जो हम मिक्स्ड मेटल बनाते हैं, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, या फिर अगर हम बोलें कि कठोरता जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जो डिफरेंट टाइप के हम वेपन्स बनाते हैं, जिसको यूटिलाइज करते हैं अपने सेल्फ डिफेंस में, या फिर अगर हम बोलें शिकार में भी, जीव जंतुओं के शिकार में, ठीक है, तो उन सब वेपन्स की भी जो ड्यूरेबिलिटी है, जो टाइम ड्यूरेशन है, जो हार्डनेस है, वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे आर्चर्स होते हैं, जो तीर वगैरह जो बनते हैं, उसमें हम क्या करते थे, इसको यूज़ करते थे, या फिर कुल्हाड़ी हुआ, या फिर जो भी वेपन्स हैं जिसको हम यूटिलाइज करते थे अपने डेली लाइफ में, उसमें हमने क्या किया, मिक्स्ड मेटल को यूज़ करने लगे हम, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ थी, एंशिएंट इंडिया में थी, ठीक है, एंशिएंट इंडिया में। तो दैट वाज समथिंग अबाउट ब्रोंज एज। इसके बाद देखते हैं आयरन एज, ठीक है। ब्रोंज एज के बाद ऐसा माना गया कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, ठीक है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, वो हमारा क्या है, आयरन है, पहली चीज़। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है आयरन है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, परसेंटेज ऑफ फाइंडिंग, परसेंटेज ऑफ फाइंडिंग भी आयरन की सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जो इजीली हमको मिल जाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे। आयरन उनमें से एक था, ठीक है। इसलिए आयरन को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता था, क्योंकि इसे हम इजीली क्या कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे और अपने वर्क के अकॉर्डिंग यूटिलाइज करते थे, ठीक है। एक ऐसा टाइम जिस टाइम में आयरन को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया गया, उसी एज को हम क्या बोलते हैं, आयरन एज, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं, द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर इनटू वर्केबल मेटल इज मच मोर डिफिकल्ट दैन कॉपर और टिन। ये कह रहा है कि अगर हम एक्सट्रैक्शन की बात करें किसके, आयरन की, ठीक है, तो वो क्या था, थोड़ा डिफिकल्ट था अगर हम बात करें कॉपर या टिन के। यानी कि कॉपर और टिन को हम इजीली एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू आयरन, वाइल आयरन इज नॉट बेटर सुटेड फॉर टूल्स दैट ब्रोंज, ठीक है। यानी कि अगर हम ब्रोंज की बात करें, ठीक है, तो ब्रोंज से हम डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास वेपन्स हैं उनको, या फिर इंस्ट्रूमेंट हैं, या फिर अदर थिंग्स हैं, उनको इजीली हम बना सकते हैं, मेक ओवर कर सकते हैं। लेकिन आयरन से हमको डिफ़िकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि आयरन आपका क्या है, हार्ड मेटल है। तो हार्ड मेटल्स को अगर हम डिफरेंट टाइप का शेप देना चाहें तो उसमें हमको डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी। और अगर ब्रोंज की बात करें तो ब्रोंज इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्ट मेटल, ठीक है। तो देखिए मेटल्स भी जो होते हैं ये दो तरह के होंगे ना, एक आपका होगा हार्ड मेटल, दूसरा आपका होगा सॉफ्ट मेटल, ठीक। अब हार्ड मेटल की अगर हम बात करें तो आयरन आपका क्या है, एक तरह का हार्ड मेटल है, ठीक है। दूसरे में ब्रोंज अगर आप लेंगे तो सॉफ्ट मेटल हो जाएगा।
गोल्ड भी आपका क्या हो जाएगा, सॉफ्ट मेटल हो जाएगा, सिल्वर भी आपका क्या हो जाएगा, सॉफ्ट मेटल हो जाएगा। तो ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमको कोई शेप देना है या फिर कोई वेपन्स बनाना है, कोई औजार बनाना है, कोई हमको एंटिक्स बनाना है जो कि हमको यूज़ करना है अपने डेली लाइफ की यूजेस में, तो हम उसको क्या करेंगे, अगर हमारे पास सॉफ्ट मेटल है तो हम उसको ईजिली शेप दे सकते हैं, ठीक है, ईजिली उसको बना सकते हैं। लेकिन वही अगर हमारे पास हार्ड मेटल है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम उसको ईजिली नहीं बना सकते हैं, हमको उसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम उसको हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर देंगे, आप लोग को पता भी होगा जो सोनार वगैरह के आप लोग दुकान में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा उसको आग देते हैं तो गोल्ड क्या हो जाता है आपका, मेल्ट करने लगता है, उसको डिफरेंट शेप में क्या होता है, उसको वो शेप डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपका सिल्वर भी होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, सॉफ्ट मेटल हैं, उसको आप अगर हाथ से भी प्रेस करेंगे तो प्रेस आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आयरन को आप अपने हाथ से प्रेस करिए, यू कैन नॉट डू इट, ठीक है, आप इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक तरह का क्या है, हार्ड मेटल है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। और टेम्परेचर के साथ साथ कभी कभी हमको अगर जैसे मान लीजिए अगर सिर्फ आपको ईजिली काम करना है नॉर्मल वे में तो हम सिर्फ टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इसको और जल्दी या इजी वे में कर लें तो उस कंडीशन में आपको प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर आपको दोनों देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका कुछ बेसिक्स, इसमें कुछ चीज़ें और हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।